Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study biodiversity in India. Now start the lecture and understand what is biodiversity. See, variabilities among animals, plants and microorganisms in a natural region is known as biodiversity. And according to Earth Summit 1992, which was held in Rio de Janeiro, Brazil, biodiversity is the variation among living organisms from different sources including terrestrial, marine and desert ecosystems and the ecological complexes of which they are a part. And in this Earth Summit, 22nd May was announced to be celebrated as International Biodiversity Day, so that people could be aware of biodiversity और biodiversity का conservation हो सके. E.O. Wilson is the father of biodiversity, and regarding biodiversity we have studied in the previous lecture. Now in this lecture we will study biodiversity in India in depth, right? This is the introduction to the biodiversity in India, and this may be asked as a 5-marker question, right? The first question may be asked from this topic: what is the status of biodiversity in India? Second, is India rich in biodiversity? So these questions may be asked as a 5-marker question, right? Also 3-marker question may be asked from this topic, right? How many realms are there in India, or how many biomes are there in India, right? And how many hot spots are there in India, right? So these questions may be asked in the examination, right? और यहाँ से अगर हम देखें तो जो 5 मार्कर है उसमें biomes भी realms भी पूछा जाता है. What is a realm? Right? Explain. This may be asked as a 5-marker question. Right? Describe the 4 hot spots of India. This may be also asked as a 5-marker question. और एक 11-marker question भी पूछा जा सकता है. Right? What is biodiversity and describe the biodiversity in India. This may be asked as a 11-marker questions. Right? So these questions may be asked in the MPPSC mains examination. Right? Now let's study these topics one by one. At first, biodiversity in India. See, India is recognized globally as one of the mega diverse countries. अब यहाँ पर मेगा डाइवर्स कंट्री का मतलब क्या हुआ कि इंडिया अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, या देयर इज अ हाई डाइवर्सिटी इन इंडिया एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. और इसके रीजंस क्या हैं? देखिए, इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स पाई जाती हैं, इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स हैं, राइट? साथ ही साथ इंडिया से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है, राइट? तो इस तरीके से इंडिया में जो है देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स, राइट? डिफरेंट सॉइल्स हैं, राइट? और डिफरेंट हैबिटेट्स हैं. इसी वजह से इंडिया में जो है अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट टाइप की जो है ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. देयरफॉर देयर इज अ हाई बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. देयरफॉर इंडिया इज द मेगा डाइवर्स कंट्री, राइट? और साथ ही साथ इंडिया इज एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल नॉलेज, राइट? फॉर अ लॉन्ग टाइम जो ट्राइबल्स हैं वो फॉरेस्ट एरिया में रिसाइड करते हैं, राइट? और जो ट्राइबल्स हैं उनको ट्राइबल्स को जो है मेडिसिनल प्लांट्स हैं या हर्ब्स हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज भी होता है, इसीलिए जो है ये बात यहाँ पर कही गई है, राइट? तो अगर 3 मार्कर में अगर हमको उत्तर लिखना हो तो हम 3 मार्कर में सीधा कह सकते हैं इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज रिच इन डाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल नॉलेज. India has 23.39 of its geographical area under forest and tree cover. अगर डिफरेंट कंट्रीज की बात करते हैं तो जो है कुछ कंट्रीज में उनके टोटल ज्योग्राफी एरिया का 10% है या फिर 5% जो है वो फॉरेस्ट कवर पाया जाता है. बट इन इंडिया, राइट, इन इंडिया आउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, राइट, there is a 23.39% forest cover or tree cover, right? एंड हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग टू इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 33% पर जो है फॉरेस्ट या ट्री कवर होना चाहिए, राइट? बट इसके लिए इंडिया अभी भी जो है
एफर्ट्स या इंडिया में जो है इनिशिएटिव्स जो है लिए जा रहे हैं सो दैट फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाए। फिलहाल में इंडिया हैज़ 23.39% ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स। वहीं अगर हम स्पेसीज रिचनेस की बात करते हैं तो इंडिया रैंक्स 7th इन मैमल्स एंड 9th इन बर्ड्स एंड 5th इन रेप्टाइल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस जो है स्टेटमेंट, राइट। तो इंडिया में स्पेसीज रिचनेस भी है और इसको अगर हम देखें तो इसको हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो है इंडिया रैंक 7th इन द मैमल्स, राइट, 9th इन बर्ड्स एंड 5th इन रेप्टाइल्स। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एंडिज्म, एंडिज्म का मतलब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्लोरा या फोना, वो केवल और केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं, राइट। दे जो फ्लोरा एंड फोना है नो लॉन्गर अवेलेबल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ एंडिज्म ऑफ वर्टेब्रेट ग्रुप्स इंडिया रैंक्स या इंडियाज पोजीशन इज 10th with birds, right, with 69 species, 5th in reptiles with 156 species and 7th in amphibians with 110 species. Also, India's share of crop is 44% as compared to the world's average of 11%. India has also been included in total 17 मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स हैं और इंडिया में 10 जो बायो जियोग्राफी रीजन्स हैं वो इंडिया में हैं, राइट। सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ऑल्सो अगर हम लार्जर स्पेस में देखें तो इंडिया रिप्रेजेंट्स, राइट, 2 रियाल्म्स, 5 बायोम्स, राइट, 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स। और इन जो बायोजियोग्राफिक रीजन्स हैं इनको फर्दर जब क्लासीफाई किया जाता है तो देयर आर 25 बायोजियोग्राफिक प्रेवंसेस, राइट, एंड देयर आर 4 हॉट स्पॉट्स। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको 3 मार्कर के लिए ये सारे के सारे जो है फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए। तो देयर आर 2 रियाल्म्स, 5 बायोम्स, 10 बायोजियोग्राफिक zones and 25 biogeographic provinces and 4 hotspots. Now अब हम जो है 1 by 1 एक को पढ़ेंगे और ये भी 5 जो है 5 मार्कर में जो है पूछे जा सकते हैं। So let's study realms of India. Now first thing is that what is realm? तो देखिए realm are large spatial regions within which ecosystems share a broadly similar biota. बायोटा का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सिमिलर टाइप का फ्लोरा एंड फोना जो है पाया जाता है और जो रियाल्म होता है उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, राइट, जैसे एक सब कंटिनेंट साइज का या कंटिनेंट साइज का। तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, यहाँ पर रियाल्म की डेफिनेशन हो जाएगी। तो बायोजियोग्राफिक रियाल्म्स आर लार्ज स्पाइशियल रीजन्स विद इन विच ecosystems share a broadly similar biota and a realm is a continent or subcontinent sized area with unifying features of geography and flora and fauna. इंडिया में कितने रियाल्म्स हैं? सो देयर आर 2 रियाल्म्स इन इंडिया। द फर्स्ट इज पेलियार्कटिक रियाल्म एंड सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर मलायन रियाल्म हो जाएगा। अब इंडिया के कौन से रीजन्स हैं जो कि पेलियार्कटिक रियाल्म में आते हैं और कौन से रीजन्स जो हैं वो मलायन रियाल्म से आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो द हिमालयन रीजन, right, the Himalayan region represented by Palearctic realm and the rest of subcontinent represents the Malayan realm, right. Now biomes of India. अब देखिए बायोम क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होती हैं उसमें जो स्पेसिफिक बायोटा पाया जाता है या जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, राइट, उस पूरे के पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, बायोम्स कहा जाता है, राइट। सो द टर्म बायोम मीन्स द मेन ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एरियाज ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक पैटर्न्स। तो 3 मार्कर के लिए आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और इंडिया में कितने बायोम्स हैं? सो देयर आर 5 बायोम्स जो कि फर्दर 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। और इन सभी बायोम्स को हमने जब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ा था, राइट, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये पांचों के पांचों बायोम्स के बारे में हमने जो है डिटेल से चर्चा की थी।
ठीक है, तो व्हाट इज बायो? द टर्म बायो मीन्स द मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एरियाज ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक patterns, and there are 5 biomes of India. The first is tropical humid forests, then tropical dry or deciduous forest including monsoon forest, third warm desert and semi desert, and fourth coniferous forest, and fifth क्या हो जाएगा यहाँ पर alpine meadows. Right now biogeographic zones. अब biogeographic zones क्या होते हैं? right, इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है उनको बायोजियोग्राफिक जोन्स के माध्यम से ही क्लासिफाई किया जाता है. तो बायोजियोग्राफिक जोन्स वर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, एंड देयर आर 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स विच आर डिस्टिंग्विश्ड क्लियरली इन इंडिया. इसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्रांस हिमालयास. राइट, तो पहला हो जाएगा यहाँ पर ट्रांस हिमालयन biogeographic zone, then second Himalayas, third is desert, fourth semi arid, fifth क्या हो जाएगा यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स, सिक्स्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर दक्कन पेनिनसुला, देन सेवंथ इज गंगेटिक प्लेन हो जाएगा, एट्थ हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नाइन्थ आइसलैंड्स, एंड 10 क्या हो जाएंगे यहाँ पर कोस्ट हो जाएंगे. सो दीज आर द 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया. अब ये जो बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं इनको फर्दर प्रोविंसेस में जो है क्लासिफाई किया जाता है. तो बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस इज एन इकोसिस्टमिक, राइट, इकोसिस्टमिक और बायोटिक सब डिवीजन ऑफ रियाम्स. राइट, तो जो बायोजियोग्राफिक जोन है और जो रियाम्स हैं उनका ही क्या हो जाएगा, ये फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगा. तो बायोजियोग्राफिक प्रोविंस इज एन इकोसिस्टमिक, राइट, इकोसिस्टमैटिक, राइट, एंड बायो सब डिवीजन ऑफ रियाम्स, और इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 25 बायोजियोग्राफिक, राइट, प्रोविंसेस. यहाँ पर प्रोविंसेस आएगा. राइट, तो यहाँ पर एक ही शब्द का क्या हो जाएगा, डिफरेंस है. अगर आप को पता हो तो इंडिया में बायोजियोग्राफिक जोन्स कितने हैं, तो देयर आर 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स इन इंडिया, एंड इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 25 बायोजियोग्राफिक, राइट, प्रोविंसेस. राइट, नाउ लेट्स स्टडी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट. ये फर्दर 11 मार्कर में पूछा जा सकता है. व्हाट इज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट, एंड हाउ मेनी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया. और प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, राइट, एक्सप्लेन हॉटस्पॉट्स एंड डिस्क्राइब हॉटस्पॉट्स इन इंडिया. राइट, चलिए तो हम उनको यहां पर समझते हैं. सबसे पहली चीज तो ये जो हॉटस्पॉट है, राइट, हॉटस्पॉट ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत ही क्या होती है, रिच होती है. राइट, ऑल्सो यहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है वो लॉस होना जो है शुरू हो चुकी है, और इन फ्यूचर जो है बायोडायवर्सिटी जो है बायोडायवर्सिटी में लॉस भी हो सकता है. इन्हीं दो कैटेगरी के आधार पर हॉटस्पॉट को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है. अब इसको डिफाइन सबसे पहले किसने किया था, नॉर्मन मेयर्स ने किया था, राइट, इन 1988 में. और जो नॉर्मन मेयर्स ने जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की डेफिनेशन दी थी, राइट, उसी को बेसिस मानते हुए कंजर्वेशन इंटरनेशनल CI ने, राइट, एडॉप्टेड मेयर्स हॉटस्पॉट्स इन 1996, और उस आधार पर जो हॉटस्पॉट हैं उनको क्या किया था, डिफाइन किया गया था. राइट, तो सिंपली अगर हम देखें तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजन्स विद हाई स्पीसीज रिचनेस एंड अ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म. Right, Norman Mayers coined the term biodiversity hotspot in 1988, and Conservation International adopted Mayers hotspots. या हम ये कहें कि जो Mayers था, right, Norman Mayers का जो hotspot का कंसेप्ट था उसको ही क्या किया था, एक्सेप्ट किया था इन 1996, और उसी के आधार पर जो हॉटस्पॉट्स का कंसेप्ट है इसको एलाबोरेट किया था. सो अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन इंटरनेशनल हॉटस्पॉट किसे कहा जाएगा, राइट, इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, राइट, एज एंडेमिज्म. कुल मिलाकर ये कि वो वैस्कुलर जो प्लांट्स हैं वो केवल और केवल उसी रीजन्स में ही पाए जाने
चाहिए, राइट। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इट हैज लॉस्ट एट लीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, और वर्तमान समय में केवल और केवल 30% जो बायोडाइवर्सिटी है वो अभी यहाँ पर बची हुई है, या 30% जो नेचुरल वेजिटेशन है वो अवेलेबल है, तो उसको हॉट स्पॉट का स्टेटस दिया जाएगा, राइट। सो अ हॉट स्पॉट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स, right? And second, hot spot has to have lost at least 70% of its original habitat, which means it must have 30% or less of its natural vegetation, right? तो या हम ये कहें कि इसका जो बायोडाइवर्सिटी है वो थ्रेटन्ड होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू पैरामीटर्स जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का स्टेटस जो है दिया जाता है, राइट। अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में कितने हैं, सो देयर आर 35 हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड, राइट, इंडिया में नहीं, इन द वर्ल्ड। एंड इन 2011 फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया रीजन वाज आइडेंटिफाइड एज द 35th, राइट, 35th बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। तो 3 मार्कर के लिए 2 फैक्ट आप याद रखें, देयर आर टोटल 35 हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड, एंड जो 35th हॉट स्पॉट है वो कौन सा है, फॉरेस्ट्स ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया रीजन। नाउ biodiversity hot spots in India. So as we know there are 4 biodiversity hot spots in India, जिसमें पहला क्या हो जाएगा हिमालयन, सेकंड क्या हो जाएगा इंडो बर्मा, राइट, थर्ड हो जाएगा यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, एंड फोर्थ हो जाएगा सुंदरलैंड। अगर आप ये जो है डायग्राम को अगर देख रहे हो तो यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हिमालयन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा इंडो बर्मा, तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो बर्मीज है, राइट, तो ये इंडो बर्मा जो कि म्यांमार और जो फर्दर देशों में फैला हुआ है, तो दिस इज हिमालयन हॉट स्पॉट, दिस इज इंडो बर्मा हॉट स्पॉट्स, एंड दिस इज वेस्टर्न घाट जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर श्रीलंका तक जो है पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। एंड फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर सुंदरलैंड, जो कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अंडमान निकोबार और उससे लेकर इंडोनेशिया तक जो है पाया जाता है, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की डेफिनेशन आप जानते हैं, अगर हमको इनको जो है एलाबोरेट करना हो तो पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हिमालय, राइट, तो हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। सो हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इंक्लूड्स द इंटायर इंडियन हिमालयन रीजन, और along with Indian Himalayan region it also includes the Himalayan region which is in Pakistan, Tibet and Nepal, Bhutan, China and म्यांमार। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर इंडो बर्मा, तो इंडो बर्मा हॉट स्पॉट इंक्लूड्स एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट असम एंड इंडो अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, क्योंकि जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स है वो किस हॉट स्पॉट में इंक्लूड होता है, वो होता है सुंडालैंड में, राइट, किसमें, सुंडालैंड में। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है एक्सेप्ट असम एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, राइट, जो इंडो बर्मा है ये हॉट स्पॉट इंडिया में है, राइट, एंड अलोंग विद इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दिस आल्सो जो है कहां तक पाया जाता है, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड क्या हो जाएगा साउथ ईस्टर्न चाइना। तो यहां पर पूरा पूरा म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। एंड थर्ड इज वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, it includes entire western ghats as well as Sri Lanka। and fourth हो जाएगा सुंडालैंड्स, तो सुंडालैंड्स includes निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, राइट, और इसके साथ ही इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मी, राइट, और फिलीपींस, ये पूरे के पूरे इसमें आ जाते हैं। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन इंडिया, राइट। अगर हम यहाँ पर लार्जर पिक्चर में देखें तो ये यहाँ पर हो जाएगा, राइट, ये यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स जो कि श्रीलंका तक पाए जाते हैं, राइट, ये क्या हो जाएगा ईस्टर्न हिमालयास हो जाएगा, राइट, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा हिमालय रीजन पाया जाता है इस तरीके से, राइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इंडो बर्मीज हो जाएगा। क्लियर, चलिए नाउ लास्ट टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी,
अब देखिए, कुल मिलाकर सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस किससे होता है, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी को लॉस नेचुरल कॉजेस भी होता है और ह्यूमन मेड या ह्यूमंस की वजह से भी होता है। या हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हो जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो जाएगा, राइट। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सबसे ज़्यादा जो डेंजर है वो किससे होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर काफ़ी प्रेशर है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी इज डिक्रीजिंग। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व अगर करना हो तो फर्स्ट थिंग इज दैट पीपल मस्ट बी अवेयर रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड थिंग इज दैट कि यदि जो है लोग जागरूक भी हैं, अवेयर भी हैं, बट डिस्पाइट दिस अगर बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है तो विच मीन्स दैट कि यहाँ पर जो है सरकार को या गवर्नमेंट को कुछ जो है सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और वो सॉलिड स्टेप्स किस में होंगे, नेचुरल जो है लॉस के रूप में होंगे। अगर कोई भी उन लोगों को वायलेट करेगा सो उसको पनिश किया जाएगा, एंड दिस में रिजल्ट एज टू protect the biodiversity, right? So laws to conserve the biodiversity, right? इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ एंड national law. So this may be asked as a 5-marker question. What are the different laws and initiatives to conserve the biodiversity, right? To conserve the biodiversity, the initiatives or laws may be categorized as a international law and national law. अब international law के बारे में हम जो है पहले ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जिसमें हमको एक चीज़ और यहाँ पर समझना है जिसके बारे में इस लेक्चर में और हम फर्दर समझेंगे, वो है रामसर वेटलैंड कन्वेंशन इन 1971। तो जो वेटलैंड्स हैं, राइट, वेटलैंड्स का इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए रामसर कन्वेंशन हेल्ड हुआ था। तो रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन, राइट, 1971, इसकी रिगार्डिंग जो है वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद में हमने समझा था, राइट, कि जो अर्थ समिट हुआ था, द अर्थ समिट 1992 विच वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन ब्राजील, उसमें भी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर वाज अ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसको CBD जाना जाता, तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992, और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्टेजेना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल लाया गया था 2000 में, राइट, और नगोया प्रोटोकॉल लाया गया था 2010 में, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेशनल लॉज, तो इंडिया में सबसे पहली चीज तो ये है कि जो फौना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो एनिमल्स हैं, राइट, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है लाया गया था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया में नेशनल पार्क और सेंचुरी को इस्टेब्लिश किया जाता है। साथ ही साथ इंडिया में अगर हंटिंग होती है तो उसके लिए पनिश भी किया जाता है। देन नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 1983, देन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी brought in 1988, then बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992 था, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही इंडिया में बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन बायोडाइवर्सिटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन 2002। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो जाएगा 2006 में, राइट। सो these were the laws to conserve the biodiversity, right? Now next is biodiversity in Madhya Pradesh, or this question has been asked previously in MPPSC mains examination. What is the status of biodiversity in Madhya Pradesh? तो मध्य प्रदेश में अगर हम बायोडाइवर्सिटी को देखें तो हमने अभी समझा था कि इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ऑन द सेम राइट, इन द सेम वे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी एक बायोडाइवर्सिटी में रिच क्या है, स्टेट है, और इसको हम जो है 3 जो है बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से ही जो है समझ सकते हैं, राइट। सो द बायोडाइवर्सिटी इन मध्य प्रदेश मे बी अंडरस्टूड एज द बायोस्फीयर रिजर्व्स विच आर इन मध्य प्रदेश, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, देन अचान कमार अमरकंटक
बायोस्फीयर रिजर्व, देन पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, राइट. सो इंडिया में देयर आर टोटल, राइट, इंडिया में देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, और आउट ऑफ दीज 18 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इन मध्य प्रदेश. और मध्य प्रदेश में जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, राइट, ये तीनों के तीनों जो यूनेस्को लिस्ट है उसमें इनको क्या किया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है, राइट. तो इंडिया के जो तीनों बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. इनके बारे में अगर हम एक्सप्लेन करें तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व तो जो फॉरेस्ट एरिया था, so this biosphere reserve has been declared in 1999, right. So Pachmari Biosphere Reserve has been declared in 1999 and this is the first biosphere reserve of the मध्य प्रदेश. और जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये फ्लाइंग स्क्वेरल्स के लिए जाना जाता है. ये 3 मार्कर के लिए आप बहुत ही अच्छे से आप याद रखें, राइट. सो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज नोन फॉर फ्लाइंग स्क्वेरल्स एंड दिस इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन 2009. The second is Achan Kamar Amarkantak. So Achan Kamar Amarkantak is the second biosphere reserve of Madhya Pradesh declared in 2005, right? And its expansion in Mandla and Didori districts of Madhya Pradesh, and along with Mandla and Didori districts of Madhya Pradesh, it is extended to Bilaspur, Chhattisgarh, right? And it has been included in UNESCO site in 2012. Now the third is पन्ना, right? अब यहाँ पर हम पन्ना के बारे में समझते हैं. सबसे पहली चीज तो ये है कि पन्ना इज द लेटेस्ट, राइट. पन्ना इज द लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द मध्य प्रदेश. सो पन्ना इज द थर्ड और लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश डिक्लेयर्ड इन 2011, राइट. और ये पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका एक्सटेंशन है एंड इट हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन 2020, right. Now biodiversity conservation law we have studied, right. Next is endangered species and IUCN classification. अब जब कभी भी हम बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जा सकता है और उसके क्या सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, राइट. क्योंकि अगर सर्टेन पैरामीटर्स होंगे तभी तो गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए या किसी स्पेसिफिक एनिमल के लिए या प्लांट के लिए कोई जो है प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है या कोई सेंचुरी जो है एस्टेब्लिश कर सकती है या नेशनल पार्क एस्टेब्लिश कर सकती है, राइट. तो जो सबसे बेटर वे माना जाता है वो क्या माना जाता है, IUCN क्लासिफिकेशन. तो ब्रॉडली इंटरनेशनल लेवल पर जो स्पेसीज, राइट, जो स्पेसीज क्या हो रही हैं, जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स, राइट, जिनके इंडिविजुअल्स में कमी आ रही है, राइट, और वो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनको IUCN क्लासीफाई करता है. फर्दर उनको रेड डाटा बुक में पब्लिश करता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, लेट्स से इंडिया, तो इंडिया में फिर जो भी एनिमल है या प्लांट है जो IUCN की रेड लिस्ट में है, राइट, क्रिटिकल एंडेंजर्ड का स्टेटस में है, उसको फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के तहत क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, राइट. तो इस तरीके से जो एंडेंजर्ड स्पेसीज हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे और IUCN के क्लासिफिकेशन को भी समझेंगे. अब यहाँ से भी जो क्वेश्चन है, यहाँ से 3 मार्क के क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है. साथ ही साथ 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, राइट. हाउ द एंडेंजर्ड स्पेसीज आर प्रोटेक्टेड इन मध्य प्रदेश और इन इंडिया, राइट. तो चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीसीज को. सो एंडेंजर्ड स्पीसीज और IUCN classification. See, to conserve the biodiversity at international level, IUCN assesses the decline in the number of species of organisms and their position in geographical area, right? और इसको scientific method से क्या किया जाता है, assess किया जाता है. तो IUCN assesses the decline in numbers
जियोग्राफिकल एरिया। अब अगर मैं आपको IUCN के बारे में बताऊं तो IUCN क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 में एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, राइट। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, फ्रांस में हुई थी। एंड IUCN रिलीजेस रेड डाटा बुक for the study of ecology and giving suggestions on them। और ये जो रेड डाटा बुक होती है इसमें जितने भी स्पीसीज को असेस किया जाता है उनको फिर फर्दर क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, राइट। Since 1964 IUCN has been releasing the list of endangered and threatened species in red data book। वहीं पर आप ये चीज ध्यान रखें कि विकिपीडिया के अकॉर्डिंग IUCN जो है सिंस 1964 IUCN हैज बीन रिलीजिंग द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीसीज इन रेड डाटा बुक। और जो फर्स्ट जो रेड डाटा बुक थी वो पब्लिश की गई थी 1966 में, राइट। और जो मीटिंग है वो 4 इयर्स में क्या होती है, मीटिंग हेल्ड होती है। और उसी मीटिंग में जो जितनी भी स्पीसीज हैं जिनका असेसमेंट हो चुका है उनको क्लासिफाई किया जाता है, राइट। और जो रेड डाटा बुक है अब हम उसको यहाँ पर जो है अच्छे से समझेंगे। तो रेड डाटा बुक क्या है, ये भी जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज रेड डाटा बुक, राइट। सो व्हाट इज रेड डाटा बुक, एक्सप्लेन दिस में बी एज द 5 मार्कर क्वेश्चन। तो मैंने अभी आपको बताया था, राइट, कि IUCN इंटरनेशनल लेवल पर जो जितने भी स्पीसीज हैं उनको असेस करता है एंड इश्यूज रेड डाटा बुक। और सिंस 1964 IUCN हैज बीन रिलीजिंग दिस रेड डाटा बुक। अकॉर्डिंग टू दिस रेड डाटा बुक 995 स्पीसीज आर एंडेंजर्ड इन इंडिया, राइट, एज पर 2015 स्टैटिक्स। और इसकी जो मैंने बताई थी इसकी जो मीटिंग है IUCN की ये एवरी 4 ईयर में होती है। और 4 ईयर में फर्दर जो रेड डाटा बुक पब्लिश की जाती है। तो जो अगली रेड डाटा बुक थी वो 2019 में आई थी एंड अकॉर्डिंग टू 2019 30,117 स्पीसीज आर एंडेंजर्ड इन इंडिया। और ये जो बायोलॉजिकल स्पीसीज होती हैं उनको 9 कैटेगरीज में क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है इन रेड लिस्ट। द फर्स्ट इज एक्सटिंक्ट, जिसको EX से यहां पर दर्शाते हैं। देन सेकंड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, राइट, मतलब वो वाइल्ड एरिया से जो नेचुरल हैबिटेट है वहां से वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट उनको कैप्टिव प्रिवेंशन में जैसे जू में या किसी बॉटनिकल गार्डन में उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट, एंडेंजर्ड वो भी कैसी, क्रिटिकली, फिर एंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल, देन नियर थ्रेटेंड, देन लीस्ट कंसर्न, और फिर क्या हो जाएगा, डाटा डेफिशिएंट, राइट। जो IUCN का असेसमेंट होता है उसमें कई ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके लिए डाटा इनफ नहीं होता है, राइट। और फिर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं जिनको एवेल्यूट ही नहीं किया जाता है, तो नॉट एवेल्यूटेड। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेड डाटा बुक हो जाएगी। और इस रेड डाटा बुक में इस तरीके से अगर हम देखें तो रेड डाटा बुक में कितने हैं, 9 ग्रुप्स हैं। और इस तरीके से जैसे जैसे वो स्पीसीज के नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स डिक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे उसको एक्सटिंक्ट की कैटेगरी की ओर क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो जो ओवरऑल स्पीसीज है, टोटल स्पीसीज ऑन द अर्थ, राइट, उन टोटल स्पीसीज में से कुछ स्पीसीज को क्या किया जाता है, एवेल्यूट किया जाता है, और कुछ स्पीसीज को एवेल्यूट ही नहीं किया जाता है, राइट। तो सम स्पीसीज आर नॉट एवेल्यूटेड, तो जिनको एवेल्यूट नहीं किया जाता उनको नॉट एवेल्यूटेड कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। फिर कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनका एवेल्यूशन होता है, और एवेल्यूशन में यदि उनके लिए जो है डाटा, राइट, उनका हैबिटेट कहाँ है, राइट, उनके नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स कितने हैं, उनके जो है इंडिविजुअल्स में डिक्रीज कितना हो रहा है, तो उनको डाटा डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब डाटा जो है इनफ नहीं है, राइट। सो डाटा इज नॉट इनफ, तो उनको डाटा डेफिशिएंस कैटेगरी में रखा जाता है। फिर जो एडिक्वेट डाटा होता है, एडिक्वेट जिन स्पीसीज को एसेस किया जाता है, एंड इफ देयर इज इनफ डाटा
तो फिर उनको इन कैटेगरी में जो है क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, लीस्ट कंसर्न हो जाएगा, फिर नियर थ्रेटन्ड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इंडेंजर्ड हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएगा, देन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। राइट, अगर आप यहाँ पर जो है 3 मार्कर के लिए, अगर 3 मार्कर या आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप डाटा याद रखना चाहें तो ये यहाँ पर लिखा है, जो ऑल स्पेसीज हैं वो कितनी है, 80,065। राइट, सो 82,065 जो स्पेसीज हैं उनको अभी तक रेड जो है IUCN ने जो है असेस किया है, उसमें से 36,952 किस में आ रही हैं, लीस्ट कंसर्न में। अगर आप देखें टोटल 82,000, तो उसमें से लगभग अगर हम देखें तो 47 जो परसेंटेज जो स्पेसीज हैं वो लीस्ट कंसर्न में है। राइट, फिर जो 4,406 जो है नियर थ्रेटन्ड में है, फिर 11,654 वल्नरेबल कैटेगरी में है। राइट, 7,005 जो स्पेसीज हैं वो एंडेंजर्ड है, और जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो कितनी है, 5,176 जो स्पेसीज हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वहीं अगर आप देखें तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कितनी है, 78 है। राइट, तो वाइल्ड एरिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बट इनको कैप्टिव प्रिवेंशन में रखा गया है, और 868 स्पेसीज ऐसी हैं जो अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विच मीन्स द लास्ट मेंबर ऑफ दीज स्पेसीज उसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। क्लियर। अब यहाँ पर 3 मार्कर के लिए आप सिंपल जो है याद रख सकते हैं एक्सटिंक्ट, तो अभी तक एक्सटिंक्ट में क्या हो चुके हैं, राइट, डायनासोर जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो डायनासोर, देन स्कारलेट मकाओ, राइट, मैमथ एंड गेंट माओ, ये सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन कौन से हैं इंडिया में, तो इंडिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, देन एलिगेटर, राइट, फ्लाइंग स्क्वायरल, राइट, हिमालयन क्वेल, राइट, साइबेरियन क्रेन, गंगेज शार्क एंड पिग्मी हॉक, these are critically endangered. Then endangered species में कौन कौन से आते हैं, गंगा डॉल्फिन, ध्यान रखें, गंगा शार्क is in critically endangered, whereas गंगा डॉल्फिन is in endangered. Then snow leopard, नीलगिरी थार, right, pangolin and red panda. Then vulnerable में वन हॉर्न यूनिकॉर्न, सी काउ, ये जिसको डोगोंग भी कहा जाता है, वाइल्ड बफेलो, टाइगर, लेपर्ड, 4 हॉर्न एंटीलोप एंड स्लोथ बियर। राइट, नियर थ्रेटन्ड में कौन कौन सी स्पेसीज हैं, हिमालयन तार एंड तिबेतियन क्या हो जाएगा, एंटीलोप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग वाले डाटा जो है वो इस तरीके से हैं, हिमालयन जो थार है वो नियर थ्रेटन्ड में आता है, वहीं जो नीलगिरी थार है ये किस में आता है, एंडेंजर्ड में आता है। राइट, देन तिब्बतन एंटीलोप ये किस में आता है, नियर थ्रेटन्ड में, और जो 4 हॉर्न एंटीलोप है ये आता है वल्नरेबल में। राइट, देन लीस्ट कंसर्न में चिंकारा, बार्किंग मंकी। राइट, तो इस तरीके से लेट्स स्टडी वन बाय वन। अब यहाँ से 3 मार्कर के लिए आप जो है ये भी याद रखें कि इनकी डेफिनेशन क्या है। जैसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज का मतलब क्या है, तो देखिए द स्पीसीज होज लास्ट मेंबर हैज बीन डेड। राइट, अगर IUCN डिटेल असेसमेंट करता है और उस डिटेल असेसमेंट में ये आता है कि द लास्ट मेंबर हैज बीन डेड, तो उसको एक्सटिंक्ट कैटेगरी में जो है इंक्लूड किया जाता है। तो द स्पीसीज होज लास्ट मेंबर हैज डेड इज नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीसीज। राइट, या हम कह सकते हैं कि नो लिविंग मेंबर ऑफ दिस स्पीसीज हैज बीन सीन इन द लास्ट 50 ईयर्स। और एग्जांपल्स क्या है, डायनासोर्स। राइट, तो डायनासोर्स हो जाएंगे, डायनासोर्स हो जाएगा, डोडोवर्ड हो जाएगा, मैमथ एलिफेंट हो जाएगा, ग्लिप्टोडॉन हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, तस्मानिया टाइगर। राइट, ये हो जाएंगे डायनासोर, एंड ये हो जाएगा स्कारलेट मकाओ, डायनासोर, राइट, तस्मानिया टाइगर, ग्लिप्टोडॉन, मैमथ, डोडोवर्ड एंड डायनासोर, ये सभी एक्सटिंक्ट क्या है, स्पीसीज है।
नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस में बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज, इसके लिए CR जो है, CR से इसको दर्शाया जाता है। अब देखिए किन स्पेसीज को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज माना जाता है। तो देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज वे स्पेसीज हैं जो कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे हैं, राइट। अर्थात इनको वाइल्ड एरिया में इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो नेचुरल हैबिटेट का लॉस हो चुका है और वो वाइल्ड एरिया में जो है एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, राइट। सो दोज स्पेसीज which have extremely high risk of extinction in wild areas, या फिर हम ये कहें कि जिनकी पॉपुलेशन राइट 90% से क्या हो चुकी है, जो है कम हो चुकी है, राइट। सो देयर इज अ रिडक्शन इन पॉपुलेशन ग्रेटर देन 90% ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, या फिर अगर हम बात करते हैं जिनकी पॉपुलेशन अब कितनी बची है, केवल और केवल 50, राइट। सो इफ द पॉपुलेशन इज less than 50 mature individuals, या extinction in the wild at least 50%, जो 50% population वो last 10 years में हो चुकी है। तो ये जो 3 पैरामीटर्स हो चुके हैं, सबसे पहला पैरामीटर क्या है, there is a extreme high risk of extinction in the wild areas, क्योंकि उनके habitat loss हो चुके हैं। दूसरा there is a reduction in population greater than 90% over the last 10 years, और यदि उनके केवल और केवल 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स ही जो है अभी जीवित हैं, या फिर देयर इज एक्सटेंशन इन द वाइल्ड एटलीस्ट 50% इन देयर 10 ईयर्स, राइट। और दीज आर कंसिडर्ड टू बी फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज में जो है इंक्लूड किया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, तो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, देन एलिगेटर, फ्लाइंग स्क्वायरल जो कि कहाँ पर पाई जाती है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। देन हिमालयन क्विल हो जाएगा, साइबेरियन क्रेन, गंगेस शार्क, राइट, एंड पिग्मी हॉक। नाउ जो 2019 की जो रेड डाटा बुक है, जो लेटेस्ट रेड डाटा बुक है, उस लेटेस्ट रेड डाटा बुक में कुछ स्पेसीज को इंक्लूड किया गया है, तो ये भी आप याद रखें, हो सकता है 3 मार्कर में जो है पूछा जाए, राइट, कि व्हाट आर द स्पेसीज, राइट, व्हाट आर द स्पेसीज, राइट, जिनको किस में रेड डाटा बुक में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है अकॉर्डिंग टू न्यू रेड डाटा बुक। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स किसके हैं, मैमल्स। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स एज फॉर द लेटेस्ट रेड डाटा लिस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें क्या हो जाएगा, कोंडाना रेट। तो पहला क्या हो जाएगा, कोंडाना रेट, देन मालाबार सेबिएट, राइट, देन कश्मीर स्टैक जिसको अंगुल भी कहा जाता है, एंड रिवर डॉल्फिन। ये ऐसे मैमल्स हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट, आर्थ्रोपोड्स, इसमें क्या हो जाएगा, रामेश्वरम, राइट, पैराचूट स्पाइडर हो जाएगा। देन पिकॉक क्या हो जाएगा, तरंतुला हो जाएगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिशेस, राइट, जिसमें क्या हो जाएगा, पुकोडे लेक बर्ब हो जाएगा, तो पुकोडे लेक बर्ब, गंगेस रिवर शार्क हो जाएगा, राइट, और क्या हो जाएगा, पौंडीचेरी शार्क हो जाएगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इसमें क्या क्या आते हैं, घड़ियाल, राइट, घड़ियाल हो जाएगा। व्हाइट स्पॉटेड बस फ्रॉग हो जाएगा, एंड टोड स्किन्ड क्या हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा। तो ये सभी क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। नाउ हो जाएगा यहाँ पर एंडेंजर्ड एनिमल्स। सबसे पहली चीज तो पैरामीटर क्या है, सच एनिमल्स विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड इन द लास्ट 10 years 80% ऑफ देयर पॉपुलेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो ये जो है 70 to 80% का जो है पैरामीटर चलता है। देखिए सिंपली बात है, यदि किसी स्पेसीज की, राइट, 10 years में, यदि किसी स्पेसीज के 10 years में मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, तो उसको किस में रखा जाता है, CR कैटेगरी में रखा जाता है। और इफ इन द लास्ट 10 years 80% ऑफ देयर पॉपुलेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड, तो उसको किस में रखा जाता है, एंडेंजर्ड स्पेसीज में रखा जाता है। और देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, इसमें क्या आ जाएगा, गंगेस डॉल्फिन,
राइट, स्नो लेपर्ड नीलगिरी तार, पेंगोलिन एंड क्या हो जाएगा रेड पांडा, दिस इज पेंगोलिन, राइट, दिस इज राइट। चलिए अब अगला हो जाएगा यहाँ पर वल्नरेबल स्पेसीज, राइट। वल्नरेबल स्पेसीज क्या होती हैं? वल्नरेबल स्पेसीज आर दोज स्पेसीज व्हिच हैव हाई रिस्क ऑफ एंडेंजरमेंट इन द वाइल्ड, राइट, जिसमें क्या हो जाएगा वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न हो जाएगा, राइट, देन सी कॉव या डुगोंग हो जाएगा, गौर या जिसको वाइल्ड बफेलो कहते हैं, देन टाइगर, लेपर्ड, फोर हॉर्न एंटीलोप एंड स्लोथ पियर, देन नियर थ्रेटेंड स्पेसीज या एंटी, राइट। These species are likely to become endangered in near future, जैसे क्या हो जाएगा हिमालयन तार और दूसरा क्या हो जाएगा तिब्बत एंटीलोप हो जाएगा। देन लीस्ट कंसर्न में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जिनको क्या है लोएस्ट रिस्क होती है, तो लीस्ट कंसर्न में जिनको लोएस्ट रिस्क होती है और डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ मोर रिस्क एट कैटेगरी, राइट, जैसे जो 3 मोर रिस्क कैटेगरी है, राइट, जैसे एक क्या हो जाएगी यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एंडेंजर्ड हो जाएगा, फिर तीसरा कौन सी हो जाएगी यहाँ पर वल्नरेबल स्पीसीज हो जाएगी, राइट, और नियर थ्रेटन्ड। इन कैटेगरीज में जब नहीं आती तो उसको किस में रखा जाता है लीस्ट कैटेगरी में, जिसकी लोएस्ट रिस्क होती है। और वाइड स्प्रेड एंड एवंटेंट टैक्सा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, जैसे क्या हो जाएगा चिंकारा हो जाएगा, वर्किंग मंकी, और ब्लू क्या हो जाएगा काऊ हो जाएगा, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ रेड डाटा बुक एज वेल, राइट। नाउ वी विल मीट इन अपकमिंग lecture. Till then, thank you.